Hello, everybody. Welcome to Chapter 10 of the second and a very exciting edition of Too Weak, Too Strong, offering our members and future members more opportunities to learn and grow. My name is Rashid Khan, and I am very happy to see you all joining us today live. Today is 25th of May. It is an extremely important date to remember. So if you don't know why, then let me share you the details why this date is very important. So today is the last day for our members and future members to renew their subscription for 2021 and avoid suspension of their rewarding connection with their global network. So if you are a member, please make sure to submit your CPD declaration, and of course, members, affiliates, and students, you all have to make sure you've cleared all your outstanding fee on your MyACC account. Again, today is the final deadline, so stay on track to a rewarding career. And let's get back to today's agenda. We have a great trainer who's joined us from our approved employer, Excellence Delivered Private Limited. EXD is an SAP Platinum partner and Oracle Gold partner, providing implementation support and upgrade services of multiple leading ERP, CRM, and business intelligence systems, including SAP, Oracle, IFS, Odoo, Shopify, and Business Objects. EXD is also a leading educational partner of SAP and other leading technology solutions. Their education vertical offers interactive e-learning trainings at a state-of-the-art facility with a structured SAP ERP training pattern offered directly by SAP. So EXD works with a wide range of industries in different locations around the globe, having catered 200 plus clients in 12 industries with strong business presence in 5 countries, including major cities like Lahore, Karachi, Riyadh, Dubai, Las Vegas, and Doha. Mohammed Wasim, who is the Senior Solution Architect Finance at EXD, is delivering today's session for us. So thank you, Wasim. And topic for today's training is an overview of Budget Control System, BCS, in SAP. We'll be talking about the funds management module in SAP, a little overview with more focus on a practical demo with live view of its user experience. And yes, we'll be taking your questions in the end. So without further ado, वसीम साहब, आपसे दरख्वास्त है कि आप प्लीज आज की ट्रेनिंग का बाकायदा आगाज कीजिए. Are you there, Wasim? जी, आइए. Over to you. बहुत शुक्रिया. ओके, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन. मेरा नाम मोहम्मद वसीम है और मैं EXD में FICU FMGM कंसल्टेंट हूँ. हम आज की प्रेजेंटेशन को शुरू करते हैं. बिस्मिल्लाह. हमारा आज का एजेंडा है एन ओवरव्यू ऑफ बजट कंट्रोल सिस्टम. SAP में जो मुख्तलिफ मॉड्यूल्स होते हैं फंक्शनल और टेक्निकल, उसमें फंक्शनल साइड पर जो वेरियस मॉड्यूल्स हैं उनमें जो हमारा फाइनेंस का शुब है उसमें आ जाते हैं FICO, और ओवरऑल जो SAP का पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट का इंडस्ट्री सॉल्यूशंस हैं उसके अंदर FICO के साथ FM और GM फॉल करते हैं. इन 4 मॉड्यूल्स में से हमारा आज का टॉपिक है FM का मॉड्यूल, जिसको SAP में बोलते हैं फंड्स मैनेजमेंट. और फंड्स मैनेजमेंट के अंदर जो बजट कंट्रोल सिस्टम है उसको हम आज ओवरव्यू करेंगे. तो ये है हमारा आज का एजेंडा. सबसे पहले हम देखेंगे कि SAP FM और BCS का कंसेप्ट है क्या. सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं. SAP में फंड्स मैनेजमेंट का मॉड्यूल बेसिकली डिजाइन किया गया था. आपकी जो बजट का सिस्टम होता है किसी भी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है या वो सर्विस चेक करती है, तो वहाँ पे आपके जो भी सेल्स और एक्सपेंसेस के बजट्स होते हैं उनको सिस्टम में एंटर करना, उनको रिलीज करना, आपकी बजट के थ्रू आपके तमाम इनकम एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना, ये सब फंक्शंस हम परफॉर्म करते हैं और कंट्रोल करते हैं थ्रू SAP FM मॉड्यूल. So it is basically used to monitor and control the revenue and expenses as per organization approved budget. तो अगर आपकी कंपनी में कहीं भी कैसे रिक्वायरमेंट है कि उन्हें अपने बजट को कंट्रोल करना है, तो उसके लिए हमेशा हम SAP में FM का मॉड्यूल यूज करेंगे. Secondly, FM allows to create and release the budget.
द प्लान एंड एक्चुअल बजट फॉर इंडिविजुअल एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एसपी में जो हमारा कंसेप्ट होता है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का, उसमें ये चीज़ रिक्वायर्ड होती है कि हम बजट कभी भी इंटर करने से पहले चाहते हैं कि उसको हम ड्राफ्ट लेवल पे भी लेके आएँ। तो जो ड्राफ्ट बजट हम एसपी में लेके आते हैं उसको एसएपी की ज़बान में हम कहते हैं प्लान बजट। और प्लान बजट में मल्टीपल वर्जन हमारे पास होते हैं। तो प्लान बजट को इंटर करने के बाद जब मैनेजमेंट ये तय करती है कि अब हम एक्चुअल बजट की तरफ जा सकते हैं, तो उसको फिर कन्वर्ट किया जाता है एक्चुअल बजट के अंदर। तो बेसिकली ये दो तरह के वर्जन होते हैं एसपी में, प्लान बजट और एक्चुअल बजट। एक्चुअल को फाइनल बजट भी हम नॉर्मली एसपी में बोलते हैं। तो ये जो प्लान टू एक्चुअल बजट की तरफ हमारे कन्वर्शन है, ये होता है एफएम के अंदर। और इसमें जो बजट की हम प्लानिंग करते हैं, उसमें हमारे पास 3 तरह के मैंडेटरी मास्टर डेटा ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो कि फंड सेंटर और कमिटमेंट आइटम होते हैं। इन तीनों को हम वन बाय वन तफसील से आगे जाके देखेंगे। इसमें जो ये लिखा हुआ है ना, फॉर इंडिविजुअल एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉर्मली एफएम के अंदर हम असाइन करते हैं थ्रू फंड सेंटर। तो फंड सेंटर क्या होता है, इसकी मैपिंग कैसे होती है एसपी एफएम की दूसरे मॉड्यूल्स के साथ, वो हम डिटेल में आगे जाके देखेंगे। उसके ऊपर हमारी अलग से स्लाइड्स है। अभी जैसे मैंने आपको बताया, बजट कैन बी क्रिएटेड इन मल्टीपल वर्जन्स, यानी जो आपके ड्राफ्ट वर्जन है 3, 2, 1, उसके बाद फाइनली जो आपका एक्चुअल वर्जन होगा वो 0 होगा। Whereas each version can be made subject to organization authorization hierarchy। तो आप लेट से 5 वर्जन बनाते हैं एसपी में, जिसमें से 4 आपके प्लान वर्जन हैं जो कि ड्राफ्ट बजट के लिए हैं, और आखिरी 0 वर्जन आपका फाइनल अप्रूव बजट के लिए है। तो ये इस कंसेप्ट के थ्रू आपका सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का कंसेप्ट अप्लाई होता है एसपी के अंदर। Point number 4, FM has master data like all other SAP modules, but FM itself has no transition data। आप में से जो लोग ERP के कंसेप्ट को समझते हैं, चाहे आपने किसी भी ERP में काम किया हो, SAP या अदर देन SAP, तो उसमें आपने देखा होगा कि 3 तरह की चीज़ें होती हैं। एक बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन, दूसरी मास्टर डाटा और तीसरी ट्रांजेक्शन। ये 3 लेयर्स हैं जो फंक्शनल साइड पे हम कंसिडर काम कर रहे होते हैं। तो इसमें जो हमारा फ्रंट एंड का पार्ट है, उसमें मास्टर डाटा है और ट्रांजेक्शन डाटा है। मास्टर डाटा में जैसे मैंने अभी आपको पॉइंट नंबर 2 पे 3 ऑब्जेक्ट्स बताए थे, फंड सेंटर और कमिटमेंट आइटम। ये तीनों मैंडेटरी ऑब्जेक्ट्स हैं, इन 3 के बगैर एफएम ऑपरेट नहीं कर सकता। ठीक है, जी एक दफा अब सॉरी हम सॉरी जी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आपकी आवाज़ में थोड़ा सा डिस्टॉर्शन है। सो या तो आपको थोड़ा सा यूल हैव टू स्पीक अप, थोड़ी आवाज़ आपको अपनी बढ़ानी पड़ेगी, या तो आप अपना जो है स्पीकर ऑन कर लें और हेडफोन्स रिमूव कर दें, शायद उससे थोड़ा सा अफाका हो। सो यू जस्ट हैव टू ईदर चेंज द माइक्रोफोन दैट यू यूजिंग, या आप थोड़ा सा लाउडली अगर बोलें ताकि वो ज़्यादा क्लियर हो जाए फॉर आवर लिसनर्स। चलिए मैं चेंज कर रहा सॉरी अबाउट दैट। हूँ। जी राशिद, कैन यू हियर मी प्रॉपर्ली? जी बहुत बहुत बेहतरीन हो गया ये, अब बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है। प्लीज़ प्रोसीड। ओके जी, अब हम पॉइंट नंबर 4 पे थे कि एफएम के अंदर मास्टर डाटा हम सबसे पहले क्रिएट करते हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल दी, फंड सेंटर कमिटमेंट आइटम। इसके एक दफ़ा जब हम फंड ये सारा मास्टर डाटा सिस्टम में क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद हम इस काबिल होते हैं कि हम कोई भी ट्रांजेक्शन सिस्टम में यूज़ कर सकें। अच्छा, एफएम एसएपी के बाकी तमाम मॉड्यूल से डिफरेंट इस तरह से है कि इस एफएम मॉड्यूल के अंदर किसी किस्म का कोई ट्रांजेक्शन डाटा नहीं होता। ट्रांजेक्शन डाटा होता तो है, लेकिन वो एफएम से आगे जाके दूसरे मॉड्यूल्स में हिट हो रहा होता है। मिसाल के तौर पर ये कि आपने जो भी बजट एसपी में बनाया, वो तो एफएम के अंदर बन गया, लेकिन उस बजट की जितनी भी कंजम्पशंस हैं और कंजम्पशन के जितने भी डॉक्यूमेंट जनरेट होते हैं, जितनी भी ट्रांजेक्शन आप इंटर कर रहे होते हैं, वो तमाम ट्रांजेक्शन आप इंटर करते हैं एफआईसीओ या प्लांट मेंटेनेंस के अंदर, या एमएम के अंदर, एचसीएम के अंदर, पीएस के अंदर। ये सब जितने भी आपके फंक्शन मॉड्यूल्स हैं, उन सब के अंदर आप अपने ट्रांजेक्शन्स पोस्ट कर रहे होते हैं, और उन ट्रांजेक्शन्स का बजट सिस्टम लाइव चेक करता है
पोस्टिंग से पहले यानी आपने कोई भी ट्रांजेक्शन पोस्ट की, फॉर एग्जाम्पल कोई वेंडर इनवॉइस पोस्ट की या कस्टमर इनवॉइस पोस्ट की, तो पोस्टिंग के टाइम पे ही सिस्टम ऑटोमेटिक इंटीग्रेशन करेगा उस मॉड्यूल की एफएम के साथ। एफएम में जाके उसका बजट चेक करेगा लाइव। अगर तो आपका बजट अवेलेबल हुआ तो वो ट्रांजेक्शन पोस्ट हो जाएगी, अगर अवेलेबल ना हुआ तो सिस्टम आपको एक एरर मैसेज शो करेगा कि आपके पास बजट सफिशिएंट नहीं है। तो ये सारा प्रोसेस एफएम का हम अभी जाके सिस्टम में लाइव डिटेल में देखेंगे। ओके, अब यहाँ पे आखिरी पॉइंट, ट्रांजेक्शनल डाटा इज एंटर्ड इन अदर एसएपी मॉड्यूल्स। जिस तरह अभी मैंने आपको एग्जांपल्स दी, फीको, एमएम, पीएस, पीएम, एचसीएम एटसेट्रा। तो आपका जितना भी बजट होता है वो हमेशा हर रेलिवेंट मॉड्यूल की अपनी अपनी ट्रांजेक्शन के दौरान चेक होता है। तो एफएम में अलग से इस तरह से चेकिंग नहीं होती कि आप विद इन एफएम चेक कर रहे हो, बल्कि हर मॉड्यूल की अपनी अपनी ट्रांजेक्शन में हम उसको चेक कर रहे हैं। अब ये सारा काम एसएपी ऑटोमेटिक कर रहा होता है, इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती। और ये सब कुछ होता है एसएपी की नेचुरल रियल टाइम क्रॉस मॉड्यूलर इंटीग्रेशन के थ्रू। ये इंटीग्रेशन के एस्पेक्ट भी है, अब जब हम सिस्टम में लाइव जाके देखेंगे तो मैं आपको वहां पे दिखाऊंगा कि एसएपी किस तरह बजट चेक कर रहा है। Shall we proceed to second slide, Rashid? जी जरूर, और किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है, they can leave the questions in the comments and we'll get back to you. Okay, let's move to second slide. Benefits of SAP FMBCS. यहाँ पे हमारे पास दो स्लाइड्स हैं। पहली स्लाइड में during transaction posting from any SAP module, system checks the budget availability for relevant area of responsibility. एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की मैंने आपको एग्जांपल दी थी, SAP FM के अंदर हम इसको बोलते हैं फंड सेंटर। तो किसी भी फंड सेंटर के ऊपर जो भी बजट हमने एफएम के अंदर प्लेस किया होगा, उसका जो लाइव अवेलेबिलिटी चेक है वो एसएपी परफॉर्म करता है ड्यूरिंग पोस्टिंग ऑफ एनी ट्रांजैक्शन फ्रॉम एनी एसएपी मॉड्यूल। और अगर तो आपका बजट अवेलेबल हुआ तो वो डॉक्यूमेंट पोस्ट हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो सिस्टम विल शो एन एरर मैसेज एंड डिसअलाउ द पोस्टिंग। तो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका कंसेप्ट है, और यही इसका एफएम का पर्पस था कि आपका बजट चाहे रेवेन्यू का हो या एक्सपेंस का हो, एसपी उसको कंट्रोल करता है। आपने जो भी साल के शुरू में बजट दिया था, एसपी इंश्योर करता है कि आप उसी बजट के अंदर रहते हुए अपने तमाम एक्सपेंस या रेवेन्यू की पोस्टिंग कर सकते हैं। एक दफा आपका बजट खत्म हो गया तो आपको एरर मैसेज आना शुरू हो जाएंगे, आपको बजट एसपी पोस्ट नहीं करने देगा। फिर उसके बाद आपने करना क्या है, वो फिर एक मैनेजमेंट डिसीजन होता है कि जब हमने क्या एडिशनल बजट एसपी में इंटर करना है, जिसे हम सप्लीमेंट बजट बोलते हैं, या हमने नहीं करना। अगर नहीं करना तो जाहिर आपका काम वहाँ पे रुक जाएगा। अदरवाइज आपको या तो किसी दूसरी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से फंड ट्रांसफर करना पड़ेगा या एडिशनल फंड सिस्टम में इंटर करना पड़ेगा, तब जाके आप वो बजट कंज्यूम कर सकते हैं। The real-time FM integration with other SAP modules prevents the budget overruns, enabling the organization to monitor their expenses and take necessary action. तो FM का सबसे बड़ा फायदा ही यही है कि इसकी जो इंटीग्रेशन है तमाम SAP के मॉड्यूल्स के साथ, उसके जरिए आपके तमाम एक्सपेंसेस और रेवेन्यू कंट्रोल हो रहे होते हैं। जो भी आपने एक कैप लगाई थी साल के शुरू में या उस पीरियड के शुरू में कि इस पीरियड का या इस क्वार्टर का या इस साल का इतना बजट है और ये ओवररन नहीं होना चाहिए, तो एसएपी उसको कंट्रोल करेगा। अब ये चीजें एसएपी में काम कैसे करनी होती हैं? FM derivation strategy is an effective tool to automatically derive the FM account assignments during transaction posting. Manual derivation is also possible. तो FM में एक कंसेप्ट होता है डेरिवेशन स्ट्रेटजी का, वहां पर हम FM के कुछ डेरिवेशन रूल्स डिफाइन कर रहे होते हैं। उन डेरिवेशन रूल्स की कोई एक फिक्स लॉजिक नहीं होती, बेसिकली वो फ्री डिफाइनेबल होते हैं, और उसमें एसपी हमें अलाउ करता है एज ए कंसल्टेंट कि हम अपनी मर्जी के डेरिवेशन रूल्स बना सकते हैं एज पर ओवर क्लाइंट रिक्वायरमेंट, या अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक। तो उसकी एक कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ऑब्वियसली उन रिक्वायरमेंट्स के अंदर रहते हुए हम जो भी डेरिवेशन रूल सिस्टम में बनाएंगे, एसएपी एज ए सॉफ्टवेयर उस हमारी प्रोग्रामिंग को रीड करेगा और हमने जो भी इंस्ट्रक्शन उसमें लिखी हुई है उनको उसी तरह वो कंप्लाई करेगा। तो अब उसमें जो लॉजिक्स आपने डिफाइन की होती हैं डेरिवेशन रूल्स के अंदर, उन्हीं के मुताबिक आपका एसएपी बजट चेक कर रहा होता है। अगर आप चाहते हैं कि डेरिवेशन ऑटोमेटिक तरीके से ना हो तो मैनुअल तरीके से भी हम ड्राइव कर सकते हैं, उसका तरीका भी मैं आपको लाइव सिस्टम में दिखाऊंगा। अगर इस पे किसी का कुछ सवाल नहीं है तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। जी, आप जरा से एक्सप्लेन अगर कर दें कि डेरिवेशन होता क्या है फॉर आवर स्टूडेंट्स जो पहली दफा ये टर्म सुन रहे हैं। ठीक है, देखिए डेरिवेशन में इस तरह एसपी में ये अलाउ करता है
कि हमने एफएम का जो बजट सिस्टम में ड्राइव करवाना है, और हमने जो भी एफएम की अकाउंट असाइनमेंट्स में आपको एग्जांपल देता हूँ। अकाउंट असाइनमेंट्स में वही 3 चीजें हैं जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि एसएपी के 3 मैंडेटरी मास्टर डाटा ऑब्जेक्ट्स हैं, फंड सेंटर और कमिटमेंट आइटम। इन तीनों के ऊपर आपका बजट प्लेस होता है, और इसी तरह जब हम बजट कंज्यूम करते हैं तो वो बजट चेक भी इन 3 अकाउंट असाइनमेंट्स पर ही हो रहा होता है। ठीक है, तो अब ये 3 अकाउंट असाइनमेंट्स हैं, इन्हीं को हम डेरिवेशन रूल्स में डिफाइन करते हैं। अच्छा, डेरिवेशन रूल्स एक ऐसा टूल है जिसके जरिए आप एफएम की दूसरे मॉड्यूल के साथ इंटीग्रेशन भी कर रहे होते हैं। इसमें मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। एफएम में एक ऑब्जेक्ट है फंड सेंटर, जिसको अभी हमने पीछे पढ़ा था एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और फंड सेंटर की जो इंटीग्रेशन एफआई के साथ होती है, तो एफआई में उसका ऑब्जेक्ट है कॉस्ट सेंटर। तो इस तरह एफएम और एफआई की जो मैपिंग हम करते हैं उसमें ये होगा कि फंड सेंटर इज इक्वल टू कॉस्ट सेंटर। जब मैं डेविएशन रूल्स के अंदर जाके ये लिखूंगा कि दिस फंड सेंटर इज इक्वल टू दिस कॉस्ट सेंटर, तो उसमें एसपी उसको रीड इस तरह से करेगा कि जब भी यूजर कोई ट्रांजेक्शन पोस्ट करते हुए फला कॉस्ट सेंटर इंटर करेगा तो मैंने उसके अगेंस्ट इस फंड सेंटर को हिट करना है, और इस फंड सेंटर के ऊपर जो बजट पड़ा हुआ होगा उसको कंज्यूम करना है। तो इसी तरह फिर मैपिंग आपकी होती जाएगी। जो फंड है वो तो आपका या तो ऑपरेशनल फंड होगा, या कैपेक्स फंड होगा, या रेवेन्यू फंड होगा। ये 3 इसके मेन एग्जांपल्स हैं। तो जो तीसरा हमारे एफएम का जो मेन ऑब्जेक्ट है कमिटमेंट आइटम, इसकी मैपिंग कहाँ पे होती है? कमिटमेंट की मैपिंग एफआई में होती है जीएल के साथ। यानी ट्रांजेक्शन को पोस्ट करते वक्त आप किसी भी जीएल के ऊपर जो पोस्टिंग करेंगे, डेबिशन रूल्स के थ्रू सिस्टम ये चेक करेगा कि उस जीएल की मैपिंग कौन से कमिटमेंट आइटम के साथ है एफएम में। तो जो जीएल एफआई में था वही चीज एफएम में होगी कमिटमेंट आइटम। तो जो जीएल आप फ्रंट एंड के ऊपर पोस्टिंग करते हुए यूज करेंगे, उसी जीएल के ऊपर आपने एफएम में अगेंस्ट इस कमिटमेंट आइटम जो भी बजट रखा होगा एसएपी उसको चेक करेगा, और उस बजट के ऊपर जो भी आपकी पोस्टिंग होगी उसको देखेगा कि आपके पास अवेलेबल है या नहीं है। अगर तो बजट अवेलेबल है उस कमिटमेंट आइटम के ऊपर तो वो पोस्ट कर देगा। बेसिकली डेरिवेशन रूल के थ्रू इस तरह हम मैपिंग कर रहे होते हैं एफएम की दूसरे मॉड्यूल्स के ऑब्जेक्ट्स के साथ। मेक सेंस, थैंक यू। ठीक है, ओके। अब हम जा रहे हैं अगली स्लाइड की तरफ। FM offers multiple options in budget posting like budget entry, budget return, budget transfer और budget supplement। ये 4 तरह के commonly used options हैं जब भी हम SCP FM के अंदर कोई बजट इंटर कर रहे होते हैं। तो बजट इंटर करते वक्त नॉर्मली अगर लेट्स सपोज आपके पास कोई एक बिल्कुल फ्रेश सिस्टम है, वहां पे पहले से 0 बजट पड़ा होगा, तो सबसे पहली एक्टिविटी जो आप परफॉर्म करेंगे जी, बजट से पहले आपकी बैटरी खत्म हो रही है वसीम साहब, इफ यू कैन जी प्लीज। यहाँ पे लाइट नहीं है, ये कनेक्टेड तो था इसके साथ एक होल्ड कीजिए। श्योर। जी, मुनीम ने क्वेश्चन किया, कैन वी हैव द स्क्रीनशॉट्स ऑफ एसएपी? यस मुनीम, अगली स्लाइड्स में हमारे पास स्नैपशॉट्स भी आएंगे। इसके अलावा विल शो योर लाइव एनवायरनमेंट, सो यू विल हैव अ बेटर आइडिया कि ये असल में किस तरह ऑपरेट हो रहा है सिस्टम। उजैर का क्वेश्चन था व्हाट इज कमिटमेंट आइटम, ये हम इसकी मजीद क्लैरिफिकेशन ले लेंगे वसीम साहब से। Zuhaib, ji haan, the recording will be shared, so you'll have a video recording which will have the slides as well. राशिद, यहाँ पे अभी ऐसे में लाइट चली गई थी, क्या मैं इसकी बैटरी चेंज कर सकता हूँ? अगर मेरे पास दूसरे सिस्टम में बैटरी तो है, अगर वो मैं रिप्लेस कर दूँ तो उसके थ्रू हम 1 घंटा अगला गुजार सकते हैं इजीली। जी 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 जी, so you'll need 2-3 minutes or जी you'll जी restart the system. Sure. जी 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 थैंक यू। Sure. Right, jab tak Wasim Saab he's replacing the battery, just a small reminder, okay, today is 25th of May, which is the last date to renew your 2021 subscription. So make sure if you have not renewed for 2021, you do it today to avoid suspension, because once you're suspended, then you have to reinstate yourself or re-register as a student.
So it's a long process plus this cost involved. So it's better that you do it today. Don't forget, this is very, very important that you renew your subscription. And if you have any questions, feel free to reach out to our customer services team and they'll be able to help you with your queries. Baki, today we are discussing the SAP Funds Management module with focus on budget control system. Wasim has taken a small break. He'll be back. And we have a system demo as well as all the snapshots of how you can use SAP for budget controlling. And if you have any questions, feel free to send us your questions. We'll make sure that we answer all your questions. So Aisha has asked a question. I have paid subscription in January. Is it payable again? No, Aisha. So every renewal is due in January at the start of the year. Because of COVID, we had extended the deadline. We did the same last year and we did it again this year. So UC की extension hai. Those who did not renew in January, they can renew it now. So today is the last date, 25th May. So every year you have to renew once. तो जिन्होंने renew कर लिया 2021 के लिए, they don't have to renew again. But तो उसका if you're not sure कि आपने renew किया था या नहीं किया था, all you need to do is go to your MyACC account. वहाँ पे अगर कोई भी आपका negative show हो रहा है amount that is still payable, it means आपकी subscription due है. अगर payable नहीं है, so इसका मतलब है आपकी subscription due नहीं है. The same is the case with members who are to submit their CPD. आपने अगर पिछले साल का CPD जमा करवा लिया है, so it means you're covered. इस साल का आप next year करवाएंगे in January या in December. So those who have already renewed, they don't have to renew again. Zuhaib ने question किया है SAP is important for ACC students. जी, तो Zuhaib, SAP is very popular in Pakistan. So you know, if you go in any big company, you see they're using SAP. So SAP is you know something that you should learn. लेकिन अगर आपकी कंपनी में Oracle use हो रहा है या कोई और you know software use हो रहा है, कोई और technology use हो रही है, तो उसके हिसाब से भी you can reach out to us. We can arrange CPD trainings for you. So no problems with that. But SAP is very popular, so that's why we focus more on SAP and less on Oracle or other technologies. क्योंकि पाकिस्तान के landscape में SAP is more popular. Shoaib Mehboob Awan ka question hai. He was unable to submit CPD. So Shoaib, this is today is the last date. वैसे तो deadline last week थी, but you know this is the grace period that you had. So today is the last date when you can submit your CPD. It's a very quick process. So CPD declaration doesn't take very long. You know, you just go on your MyACC and you know, it's a very, very quick process. And on our website, we also have a guide available जिससे आपको help हो सकती है on how to submit CPD. बाकी we ensure every year कि हम enough opportunities दें CPD requirements fulfill कर सकें free of cost. So if you are attending our webinars, so there's no reason for you not to meet your CPD minimum requirement. So that is there. Question Sajda का है, is SAP different from ERP? So SAP का ERP का भी module है, funds management का भी है. So SAP का marketing का भी platform है. So मुख्तलिफ चीजें हैं. जी कुमैल, शुरू में हमें sound issues थे, but वो resolve अब हो गए हैं. We'll make sure that you are able to hear the session properly. Abdullah पूछे SAP is a type of ERP. तो SAP is a company that has an ERP module as well as financial module. You know, SAP HANA है, जैसे for example, they also have SAP Hybris. I think उसका नाम इन्होंने change करके commerce कर दिया, SAP Commerce, which is for e-commerce businesses. तो उसमें digital marketing वगैरह भी cover होती है. तो SAP के बहुत ज़्यादा
मॉड्यूल्स हैं. सो इफ यू गो ऑन देयर वेबसाइट और उनकी प्रोडक्ट कैटलॉग आप देखोगे तो SAP इज pretty much everywhere. तो ERP is not the only thing के जो SAP cover करता है. So there are a number of things. Right, so we have a question. I'm trying to read it. Please confirm how जी, अब्दुल्ला मुनव्वर ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है. As you know, this season TWTS के जो total sessions हैं वो हैं 11 और आज second to last session है. This is session number 10. इसके बाद एक और session है. जब वो complete हो जाएगा then जिसने ये सारे सेशंस लाइव अटेंड किए हैं, दे क्वालिफाई टू अर्न ए फ्यूचर रेडी बिजनेस प्रोफेशनल सर्टिफिकेट के लिए वो इंटाइटल्ड होते हैं, विच इज FBP सर्टिफिकेट. वो सबको ईमेल कर दिया जाएगा. दोज हु क्वालिफाई, इसमें थोड़ी सी हमने एक्सेप्शन रखी थी. काफी हमें फीडबैक आया कि शुरू में पीपल वर नॉट एबल टू अटेंड ऑल लाइव सेशन, सो we've given a small relaxation के जिसमें what you can do is आप पुरानी सारी रिकॉर्डिंग्स देख लें. तो आप अपने इनबॉक्स में ACC की ईमेल सर्च करेंगे तो आपके पास जो भी लास्ट 2 week 2 strong की ईमेल आई हुई है उसमें वी हैव ऑल द लिंक्स ऑफ प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स. तो आपने सारी रिकॉर्डिंग्स देखनी है और मेक श्योर करना है कि आप ये सेशन अटेंड कर रहे हैं लाइव एंड यू ऑल्सो अटेंड द नेक्स्ट सेशन लाइव. और उसमें भी हमने एक्सेप्शन ये ऑफर कर दिया है कि जो स्टूडेंट्स सेशन एग्जाम्स दे रहे हैं जून में या कोई भी और एग्जाम दे रहे हैं जून में, so since they have to focus on the exams, so they can get back to TWTS after the exams. So I think the week commencing 7th is the exam week. Uske baad next week they can start listening to the recordings, और उनके पास 25th probably is the last date of June के तब तक वो recordings देखकर they can still earn their certificate. So we'll do 2 rounds of certificate distribution. One based on the fact people who attended last 2 sessions live, and then we'll also consider people who viewed the recording because they were registered for an exam. So these are 2 ways through which you can earn your certificate of future ready business professional, and we really appreciate कि आपने time निकाला and you attended all the sessions, and we hope कि आपकी learning और development में इसका अच्छा contribution रहा होगा. We've tried to engage top trainers, so I'm sure जो next session होगा उसमें we'll even have better trainers. तो उसकी अभी से तैयारी शुरू हो गई है and we'll let you know कि next sessions कब से start होंगे. We are just focusing now on concluding this season, or inshallah the last session will be somewhere early June. जी अली अब्बास, आपको इन्फॉर्म नहीं करना होगा कि आपने रिकॉर्डिंग देख ली है. सो बैक एंड पे हमारे पास पूरी लिस्ट आती है ऑफ ऑल द पीपल हु रजिस्टर्ड, हु अटेंडेड एंड हु व्यूड द रिकॉर्डिंग. तो आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी आप रिकॉर्डिंग लिंक पे जाते हैं दे आस्क यू टू एंटर योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड योर नेम. सो दिस इज हाउ विल लेट we'll get to know कि आपने रिकॉर्डिंग देख ली है या नहीं देख ली है. So you don't have to email us कि आपने रिकॉर्डिंग देखी है, now you need a certificate. So it's all automatic. हमारे पास लिस्ट आ जाएगी. We have a date in mind कि 25 तारीख तक जिन्होंने देखी है और वो एग्जाम्स में रजिस्टर हैं, ये 2 criteria meet हो रहे हैं. So we send them their certificate, और इसके अलावा people who viewed the last 2 sessions live, they are also eligible. जी साबिका सिफ्ते हसन, आपका क्वेश्चन है कि आपने 9th सेशन लाइव मिस किया था, तो अब आपको उसकी परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि अब हमने ये रिलैक्सेशन दे दिया है कि अगर आपने पिछले कोई भी सेशन लाइव अटेंड नहीं किए थे बट यू व्यूड ऑल द रिकॉर्डिंग्स, दिस इज मैंडेटरी कि आप रिकॉर्डिंग लाजमी देखें ताकि आप वो जो नॉलेज है वो गेन करें. And then you just attend these last 2 sessions, which is session 10 and 11. या पूरा देखेंगे तो you will automatically be eligible to earn the certificate. This is based on the feedback we received from our members and future members. Recording links के बारे में पूछा जा रहा है. So we'll try to send an email again. लेकिन आप email inbox में अपना search कीजिएगा ACC की कोई भी email last आई हुई होगी
I think the last email was circulated this morning. So you have a very recent email. This bottom में सारे links हैं of all our previous sessions. And we'll try to circulate another email after this session. So you have all the links with you. Aisha, जी राशिद, आपने जी वसीम, are you back? जी मैं हूँ जी। Sure. लेकिन अभी भी आपका ये नोटिफिकेशन तो अपेयर हो रहा है, जी इसको आप स्क्रीन, क्लोज अगर कर दें। जी वो स्क्रीन यहाँ पे शो हो रही है, और दो मेरे पास जो स्लाइड्स ओपन है डॉक्यूमेंट वो अलग है, वो ये है, मैं यहाँ पे हूँ इस वक्त। अच्छा, तो आप ये स्क्रीन वहां में से हम यहाँ पे कौन जी पॉज हो गई है, तो मैं आपको प्रेजेंटर बनाता हूँ दोबारा से, जी और अब आप दोबारा से स्क्रीन शेयर कीजिए। जी अब बताइए, नजर आ रही है आपको? जी जी नजर आ रही है, आप इसको फुल स्क्रीन ठीक करके जी सॉरी एवरीवन, नाउ वी आर बैक, सो ओवर टू यू वसीम। जी ओके, हम बात कर रहे थे एफएम के अंदर बजट एंटर करने के लिए हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं। सबसे पहले बजट एंट्री। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आप जब भी एफएम में जाएंगे तो आपको अगर बजट वहाँ पे जीरो है तो कुछ ना कुछ वहाँ पे एंटर करना पड़ेगा, उसके लिए हमारे पास बजट एंट्री का ऑप्शन है। इसके थ्रू आप अपना ओरिजिनल जो भी ओरिजिनल बजट होगा उसको एसपी में एंटर करेंगे। एक दफ़ा आपने वो बजट एंटर कर दिया तो आपको उसको रिलीज भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो एंट्री और रिलीज दो अलग अलग स्टेप हैं, सब्सिक्वेंट है, पहले एंट्री उसके बाद रिलीज। हमारे पास दूसरा ऑप्शन है रिटर्न का। अगर तो आपके पास कुछ एक्सेसिव बजट पड़ा हुआ है जिसको आपने उस फंड सेंटर से या उस कंप्यूटर आइटम से रिलीज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इसमें ये होगा कि सिंपली उस फंड सेंटर और कंप्यूटर आइटम के कम्बिनेशन के ऊपर जितना भी बजट था, लेट से 1000 रुपये का बजट था और आपने उसमें से 100 रुपये रिटर्न करना है, तो इस ऑप्शन के थ्रू सिंपली 1000 रुपये में से 100 रुपये माइनस हो जाएंगे और वो फिर बाकी 900 रुपये रह जाएंगे। ट्रांसफर का ऑप्शन इसे हम तब यूज करते हैं जब आपने किसी एक फंड सेंटर से दूसरे फंड सेंटर में बजट ट्रांसफर करना हो। तो आपके पास एक फंड सेंटर पे लेट्स से ए और बी दो है फंड सेंटर, ए के ऊपर आपके पास एडिशनल बजट पड़ा हुआ था जो कि आपकी जरूरत से ज्यादा है, और दूसरे के ऊपर बी के ऊपर जो है बजट बिल्कुल खत्म हो गया था, तो आप ए से बी में ट्रांसफर कर सकते हैं। सप्लीमेंट का ऑप्शन है अगर आपने बजट ऐड करना हो विदाउट रिटर्न और ट्रांसफर, तो सप्लीमेंट के थ्रू आप सिंपली किसी एक फंड सेंटर के ऊपर एक एडिशनल बजट पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस थे। जी वसीम साहब, एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन आई थिंक उसको हम एड्रेस कर देते हैं। वो क्वेश्चन है कि कॉस्ट सेंटर और फंड सेंटर में क्या फ़र्क है। तो जो यू नो पीपल हु आर नॉट रियली जी फेमिलियर, तो उनके लिए आप ठीक थोड़ा है, सा बहुत क्विकली एक्सप्लेन कर दें। देखिए कॉस्ट सेंटर एफआई मॉड्यूल के अंदर आपका एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर आप अपनी कॉस्ट बुक करते हैं। देखिए एक कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे कुछ आपके एलिमेंट्स होंगे जिनके जो आपके रेवेन्यू जनरेटिंग एलिमेंट्स हैं, और कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो आपके कॉस्ट इंक्रिंग एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, वो आपके उनके ऊपर आपको कॉस्ट इंकर होती है। ठीक है, और जो आपका सेल्स का डिपार्टमेंट है वो आपको रेवेन्यू जनरेट करके देता है। तो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसको आप कहेंगे प्रॉफिट सेंटर, और जो आपके कॉस्ट इंक्रीजिंग डिपार्टमेंट है उसको आप कह सकते हैं कॉस्ट सेंटर। और जो फंड सेंटर है वो एफएम के अंदर बेसिकली एक रेप्लिकेशन है या एक उसका एक मिरर इमेज है आपके कॉस्ट सेंटर का। जी एग्जैक्टली इस तरह है कि फॉर एग्जांपल एक मार्केटिंग के लिए आपने एलोकेट किया है बजट, तो जब आपने कोई मार्केटिंग की एक्टिविटी की है तो वो कॉस्ट सेंटर जो हिट हो रहा है, फंड सेंटर जो हिट हो रहा है वो मार्केटिंग का होगा या कोई जी भी बिल्कुल, पर्टिकुलर कैंपेन हो। बिल्कुल ऐसे ही। जी, ठीक है, we आगे can चलें। move to next slide, yeah. ओके, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अनकंज्यूम्ड बजट कैन आल्सो बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट फिस्कल ईयर। अब ये जो बजट कैरी फॉरवर्ड करने का ऑप्शन है ये भी हमारे पास एफएम में अवेलेबल होता है, और ये उन्हीं ऑप्शन में आपको नजर आएगा जहाँ पे आपको एंट्री, रिटर्न, ट्रांसफर या सप्लीमेंट पोस्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कैरी फॉरवर्ड के नाम से एक ऑप्शन नजर आएगा, तो उसके थ्रू ईयर एंड के ऊपर आपके जो भी रेजिडुअल बजट्स हैं आप उनको ट्रांसफर कर सकते हैं टू द नेक्स्ट फिस्कल ईयर। ठीक है, और आपके पास एफएम के अंदर काफ़ी सैकड़ों की तादाद में स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स होती हैं और हर एक रिपोर्ट का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। तो एज ए एंड यूज़र आपको जो भी अपने रिक्वायरमेंट के मतलब अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो रिपोर्ट चाहिए होगी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैंने दो एग्जांपल्स लिखी थी कि आप एक के थ्रू तो अपने बजट जो कंजम्पशन है उसी ट्रैकिंग कर सकते हैं, और दूसरे के थ्रू आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि आपका बजट जो आपने साल के शुरू में एलोकेट किया था वो कितना था और उसमें से कितना कंज्यूम हो चुका, और जो आपका रिमेनिंग है वो कितना है।
इसी तरह कई रिपोर्ट्स होती हैं जो आपके बजट वर्जन को कंपेयर करती हैं कि आपने जो ड्राफ्ट बजट शुरू में बनाया था, जिसका वर्जन आपने रखा था 3 या 2 या 1, उसमें क्या बजट था और जो आपका एक्चुअल बजट था वो आप कितना है। इसी तरह आप एक्चुअल टू एक्चुअल भी कंपेरिजन कर सकते हैं ईयर ऑन ईयर। श्योर। ये ठीक है, आगे चलें। या अभी इसके ऊपर से कोई सवाल तो नहीं है? नो क्वेश्चंस। चलिए ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि एफएम का जो एक प्रोसेस फ्लो है, जो नॉर्मल हम फ्लो चार्ट की शक्ल में आपको दिखाते हैं, वो किस तरह से है। अच्छा राशिद, इसको मैं जरा स्क्वीज कर लूँ यहाँ पे, एक सेकंड, मैं इसको भूल गया था, इसको मैं थोड़ा स्क्वीज कर लेता हूँ। जी स्क्वीज कर लें जी। जी पढ़ा जी जा रहा अब ये ठीक है, ओके फाइन। ओके, एंड एफएमबीसीएस के अंदर हमारे पास 4 यहाँ पे लेयर्स हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे फॉर एग्जांपल सिर्फ 4 दिखाई गई हैं। एक तो सबसे पहले लेयर आपकी एफएम की अपनी है। इसका प्रोसेस फ्लो इस तरह से है कि आपने सबसे पहले कोई सिस्टम में बजट इंटर करना है। अब वो बजट अगर तो प्लान होगा तो फिर आपको प्लान को कन्वर्ट करना पड़ेगा फाइनल बजट के अंदर। अगर तो आपने डायरेक्ट फाइनल बजट ही इंटर किया है तो उस सूरत में प्लान बजट का स्टेप आपका स्किप हो जाएगा। वंस आपने वर्जन 0 में फाइनल या एक्चुअल बजट इंटर कर लिया तो आपने उसको रिलीज करना है। रिलीज करने के बाद आपने उसको पोस्ट कर दिया, ठीक है, पोस्ट बजट, रिलीज बजट, ठीक है। जैसे आपका बजट रिलीज हो गया तो उसके बाद एफएम के अंदर से आपका बजट कंजम्पशन के लिए अवेलेबल है और आप किसी दूसरे मॉड्यूल में जाके उस बजट को कंज्यूम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा एमएम का मॉड्यूल है, वहाँ पे आप पीआर या पीओ के लेवल के ऊपर बजट कंज्यूम कर सकते हैं। अब ये किसी भी क्लाइंट की अपनी रिक्वायरमेंट होती है कि वो चाहे तो पीआर के ऊपर बजट को कंज्यूम कर ले, चाहे तो पीओ के ऊपर कर ले, इनमें से किसी एक के ऊपर होगा, ठीक है। इसी तरह जो आपका एसडी का मॉड्यूल है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ पे आपके सेल्स ऑर्डर लेवल के ऊपर बजट की कंजप्शन होगी। और अगर आपने एफआई के अंदर कोई वेंडर या कस्टमर की इनवॉइस पोस्ट की तो वहाँ पे भी आप इसकी एक्सपेंस पोस्टिंग कर सकते हैं। तो ये एफआई में अगर आप करेंगे तो वो एक डायरेक्ट इनवॉइसिंग होगी। अगर आप एमएम के थ्रू आएंगे तो फिर आपकी इनवॉइसिंग एमएम से होते हुए पेमेंट एफआई के अंदर होगी। तो डिपेंडिंग कि आपने एफएम की जो बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन की थी उसमें आपने सेटिंग्स क्या की थी, तो आप किसी भी लेवल के ऊपर बजट कंज्यूम कर सकते हैं इनवॉइसिंग पे या पेमेंट पे। तो जब बजट आपका कंज्यूम होगा तो एसएपी बैकएंड के ऊपर चेक करेगा कि एफएम के अंदर आपने कितना बजट रखा था उस फंड सेंटर और कंप्यूटर आइटम के कम्बिनेशन के ऊपर। अगर बजट अवेलेबल होगा तो एसएपी ऑटोमेटिक उसको कंज्यूम कर लेगा और आपकी वो डॉक्यूमेंट एमएमएसडी या एफआई में पोस्ट हो जाएगी और ऑटोमेटिक एफएम के अंदर एक डॉक्यूमेंट जनरेट हो जाएगा जिसमें बजट कंजम्पशन आप देख सकते हैं, ठीक है। तो श्योर। ये एक प्रीव्यू था जी, ये प्रीव्यू था कि एफएम का इटसेल्फ एक प्रोसेस साइकिल और उसकी इंटीग्रेशन एसएपी के दूसरे मॉड्यूल्स के साथ किस तरह चली होती है। मेक जी आगे सेंस। चलें। यस जी। If anybody has any questions, feel free to send us your questions and we can answer them later on. जी अब यहाँ पे अब मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाऊंगा। ये हमने एसएपी का जो फ्यूरी लॉन्च पैड है वहाँ से लिए थे। ये मैं आपको लाइव सिस्टम में दिखाऊंगा। बेसिकली लाइव सिस्टम में जो हमने एंट्रीज की थी उन्हीं के स्क्रीनशॉट्स लगाए थे और ये आपको शो हो रहे हैं। ये एक साइकिल है पूरे एफएम का कि आपने अगर एफएम में बजट कंज्यूम करना हो तो वो किस तरीके से होगा। अब यहाँ पे हमने इस तरह से किया कि एफआई में हमने बजट कंज्यूम करना था, ये हमारा एजेंडा था, ताकि हम एक मिनिमल बजट कंजप्शन के थ्रू आपको एक पूरा साइकिल दिखा सके। तो सबसे पहले ये एक रिपोर्ट है, एक बड़ी कॉमन रिपोर्ट है एफएम की। इसका एक ट्रांजैक्शन कोड है, ट्रांजैक्शन कोड एसपी में होते हैं हर एक प्रोसेस के लिए। तो जो ये रिपोर्ट है इसके पीछे एक यूनिक टी कोड था जिसका नाम है FMRP_RW_BUDCON। जब हमने उसको एग्जीक्यूट किया तो ये उसका स्क्रीन हमारे पास सामने आया। अब यहाँ पे मैंने एक बजट इंटर करना है। लेट्स से एक हमारे पास फंड सेंटर है फाइनेंस डिपार्टमेंट के नाम से और उसका कमिटमेंट आइटम है ट्रेनिंग चार्जेस के नाम से, और इसका फंड है INT इंटरनल या EXT एक्सटर्नल, ठीक है। तो उनसे जो भी रेलिवेंट हो आप उसको यूज कर लें। और इस कम्बिनेशन के ऊपर फंड सेंटर और कमिटमेंट आइटम, इन तीन के कम्बिनेशन के ऊपर हमने एक बजट इंटर किया 1,01,000 रुपए का, या जितना भी आपने करना हो, 50,000, लाख, करोड़, जो भी है, ठीक। बजट जब आप इंटर करेंगे
तो आपको सबसे पहले वो आपको इस आखिरी कॉलम करंट बजट के नीचे नजर आएगा। ठीक है, अभी आपने एससीपी के अंदर सिर्फ बजट को इंटर किया है, उसको अभी रिलीज नहीं किया, तो सिर्फ एंट्री लेवल के ऊपर आपको इस आखिरी कॉलम के अंदर वो अमाउंट नजर आएगी। जब आप उसको सब्सिक्वेंटली रिलीज करेंगे तो वो अमाउंट आपको फिर यहाँ भी नजर आएगी, कंज्यूमर बजट जो आपका ये पहला कॉलम है। ठीक है, जैसे रिलीज होगा तो आपको अब ये दोनों कॉलम पहला और आखिरी ये दोनों अपडेट हो जाएंगे और यहाँ आपको सेम अमाउंट नजर आएगी। हाँ, अब यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन ये भी है कि फॉर एग्जाम्पल आपने बजट इंटर किया था 1 लाख रुपए का, और आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि हमने इस 1 लाख को एज अ होल एट वंस रिलीज नहीं करना, बल्कि आपने इसको पार्शियल रिलीज करना है, तो आपने उसमें से 70,000 या 80,000 रिलीज करना था। तो ये हमारे पास पॉसिबिलिटी है एसएपी के अंदर। तो अगर आपने 80,000 उसमें से रिलीज किया तो उसमें ये होगा कि आपको कंज्यूमर बजट में नजर आएगा 80,000 और करंट बजट में नजर आएगा 1 लाख। तो अगर आपको ये कॉलम इस तरह डिफरेंट नजर आए तो उसके पीछे लॉजिक ये सिस्टम में काम कर रही होगी। ठीक है, तो ये पहला और चौथा कॉलम का जो आप रिलेशन में आपको बताया, ये चीज क्लियर हो रही है सबको? Yes, I think it's very straightforward. Yeah. ठीक ठीक है, ओके। अब एक दफा आपने बजट एसपी में रिलीज कर दिया तो उसके बाद हमारा अगला स्टेप होता है उसको कंज्यूम करना। जितना मैंने आपको बताया, आप उसको एफआई में कर सकते हैं, सीओ में, या एमएम के अंदर, या पीएस के अंदर, एचसीएम के अंदर, प्लांट मेंटेनेंस के अंदर, किसी भी मॉड्यूल में आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो जब आप उसको कंज्यूम करेंगे, लेट से जैसे यहाँ पे 5,000 रुपए का बजट था, आपने कंज्यूम किया, 1,01,000 में से आपने 5,000 रुपए की ट्रांजेक्शन पोस्ट की, कोई वेंडर इनवॉइस पोस्ट की। जब वो इनवॉइस आपने पोस्ट की तो एसएपी ने सबसे पहले यहाँ पे आके चेक किया कि कंज्यूमर बजट के कॉलम के नीचे हमारे पास कम से कम 5,000 रुपया था या नहीं था। अगर तो 5,000 रुपया था तो आपको वो ट्रांजेक्शन पोस्ट हो जाएगा, उसका डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट हो जाएगा, पोस्टिंग के साथ ही आपकी डबल एंट्री सिस्टम में पोस्ट हो जाएगी और 5,000 पैसे आपकी कंजम्पशन पोस्ट हो जाएगी एफएम के अंदर। इस कंजम्पशन के साथ आपका जो अवेलेबल बजट का कॉलम है ये भी अपडेट होगा। इसका सिंपल सा फार्मूला है कंज्यूमर बजट माइनस कंज्यूमर बजट इज इक्वल टू अवेलेबल अमाउंट, या सिंपली कॉलम नंबर 1 माइनस कॉलम नंबर 2 इज इक्वल टू कॉलम नंबर 3। तो यहाँ पे हमेशा आपको एक रिमाइंडर बैलेंस नजर आएगा कॉलम ए और बी का। ठीक है, Wasim sahab, इस सिलसिला में we are getting a few questions. जी एक क्वेश्चन है हमारे पास सैयद अब्दुल्ला मुनव्वर और सैयद मोहम्मद अली का। ये पूछ रहे हैं कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमेबल बजट एंड करंट बजट, क्योंकि ये जी दोनों जी अमाउंट बिल्कुल, सेम आ रही हैं, ये क्यों है? जी 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 बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है। देखिए, एसपी में बजट इंटर करने के 2 स्टेप्स हैं, जैसे हमने आपको बताया। पहले स्टेप में आप बजट इंटर करते हैं और सब्सिक्वेंट दूसरे स्टेप के अंदर आप उसको रिलीज करते हैं। जब आपने पहले स्टेप में बजट इंटर किया, इट इज स्टिल नॉट रेडी टू कंज्यूम। ठीक है, कंज्यूम आप तब कर सकते हैं जब आप उसको सब्सिक्वेंटली स्टेप 2 में रिलीज भी करेंगे। ठीक है, जब आपने पहले स्टेप में बजट इंटर किया तो वो आपको यहाँ पे शो होगा कॉलम नंबर 4 के अंदर, करंट बजट के नीचे। ठीक है, जब आप उसको रिलीज भी कर देंगे तब आपको शो होगा कॉलम नंबर 1 कंज्यूमेबल के अंदर। इन दोनों में असल फर्क ये है कि कंज्यूमेबल बजट को आप किसी भी ट्रांजेक्शन में यूज कर सकते हैं, करंट बजट को यूज नहीं कर सकते। जब बजट इंटर होने के बाद रिलीज भी हो जाएगा, रिलीज बजट को आप यूज कर सकते हैं। राइट, ये अनरिलीज्ड बजट है जो प्लान हुआ है लेकिन अभी जी तक बिल्कुल, एलोकेट नहीं हुआ है, दैट इज करंट बजट। लेकिन जी उसको ऑफ कोर्स हम इग्नोर ही करेंगे व्हेन वी आर वर्किंग ऑन दिस फाइल। तो हमारे पास कंज्यूमेबल बजट है, उसी से हम जो है जो भी स्पेंडिंग हमने करनी है कर सकता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। नाउ यू कैन प्रोसीड। ओके ओके, अब यहाँ पे हमने सबसे पहले एक रिपोर्ट चलाई, वहां पे हमने देखा कि हमारे पास कंज्यूमेबल बजट कितना पड़ा हुआ था। अब इसको हमने कंज्यूम करना है। एज्यूमिंग कि आपके पास पहले बजट नहीं था, यहाँ यानी आपके पास ये तमाम कॉलम्स बिल्कुल जीरो जीरो थे, उस सूरत में आपको क्या करना होगा कि आप सेकंड स्लाइड पे आएंगे। यहाँ पर ये है आपका बजट एंट्री का एक टेम्पलेट। यहाँ पे आपने अपना बजट इंटर करना है। इसको अब आप जरा अच्छी तरह समझ लें। यहाँ पे आपके पास 2 तरह का डाटा है। ये जो ऊपर आपको डाटा नजर आ रहा है, ये सब जो ड्रिल डाउन कॉलम्स हैं, ये इनको हम कहेंगे हेड लेवल डाटा। और ये जो पेमेंट बजट के नीचे आपको डाटा नजर आ रहा है, इसको हम एसपी में बोलते हैं लाइन आइटम लेवल डाटा। तो हेडर लेवल के ऊपर हमने सबसे पहले रेलिवेंट अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पे चूज करना है। तो अगर मैं यहाँ पे बजट इंटर करने जा रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन होंगे, बजट या रिलीज। तो मैं इसमें से चूज करूंगा बजट। प्रोसेस में आएंगे, प्रोसेस में मेरे पास यहाँ पे
मल्टीपल ऑप्शंस होंगे जो मैंने आपको दिखाए थे पीछे, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ये वाले बजट एंट्री, रिटर्न, ट्रांसफर, सप्लीमेंट या कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, ये आपको यहाँ पे नजर आएंगे इस प्रोसेस के अंदर। ठीक है, डॉक्यूमेंट टाइप, अब ये एसएपी में डॉक्यूमेंट टाइप्स डिफाइन होती हैं। डॉक्यूमेंट टाइप्स एक कंसेप्ट है एसएपी में, कोई भी डॉक्यूमेंट जो पोस्ट होती है उसी आइडेंटिटी होती है डॉक्यूमेंट टाइप। ठीक है, वो हम क्लासिफिकेशन के अंदर डिफाइन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 तरह की डॉक्यूमेंट टाइप्स बनाई थी, एक बजट एंट्री की, फिर रिटर्न की, सप्लीमेंट की, ट्रांसफर की और कैरी फॉरवर्ड की। तो यहाँ पे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट टाइप है हमारी बजट इंटर, ZENT, वो मैंने यहाँ पे चूज की। अब यहाँ पे हम आगे वर्जन के ऊपर। वर्जन के ऊपर मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया था कि हमारे हमारे पास 2 तरह के वर्जन होते हैं, एक प्लान वर्जन और दूसरा एक्चुअल वर्जन। प्लान में आप मल्टीपल वर्जन डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दी 3-2-1, और 3-2-1 से होते हुए जब आप 0 पे आएंगे वो आपका फाइनल और एक्चुअल बजट होगा। तो हमारा पर्पज यहाँ पे था एक्चुअल बजट एंटर करना, तो हम 0 पे यहाँ पे 0 एंटर करेंगे और उसके बाद डॉक्यूमेंट डेट देंगे। अब ये वो डेट है जिस डेट के ऊपर आपने अपना बजट डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड करना है। ये हमारी एक तरह से पोस्टिंग डेट भी है। एसपी में डॉक्यूमेंट डेट और पोस्टिंग डेट 2 तरह की डेट्स होती हैं, लेकिन यहाँ एफएम के अंदर ये एक की डेट होती है, डॉक्यूमेंट डेट। इसके बाद आपका फिजिकल ईयर आ जाएगा जिस ईयर के लिए आपने अपना बजट एंटर करना है। फिर बजट पीरियड आ जाएगा। अब ये बजट टाइप है, सॉरी, बजट टाइप में आपको यहाँ पे एसपी ऑटोमेटिक रेलिवेंट टाइप ही शो करेगा, डिपेंडिंग कि यहाँ पे आपने कौन सी पहले 3 जो आपने स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दी थी, बजट, इंटर और ZENT, इन 3 के कॉम्बिनेशन के ऊपर एसपी यहाँ पे आकर बजट टाइप आपको रेलिवेंट ओरिजिनल बजट ZORG ही शो करेगा, इसके अलावा कोई दूसरी शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको चूज कुछ नहीं करना, सिंपली ZORG को सेट करना है और यहाँ पे इसको एंटर करना है। अब इसके बाद हमारे पास आखिरी आ गया हेडर लेवल पे फंड। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि एसपी में मास्टर डेटा लेवल पे 3 मैंडेटरी ऑब्जेक्ट्स हैं, फंड, फंड सेंटर और कमिटमेंट आइटम। तो उसमें से फंड आपने यहाँ पे सेट करना है कि वो आया इंटरनल फंड है, एक्सटर्नल फंड है या रेवेन्यू का फंड है। एक्सपेंस के लिए 2 फंड होंगे, इंटरनल या एक्सटर्नल। अगर रेवेन्यू को आपने वेट करना है तो उसके लिए आपका बजट होगा, सॉरी आपका फंड होगा रेवेन्यू के नाम से। तो आपने रेलिवेंट फंड यहाँ पे सेट करना है। हेडर लेवल आपका यहाँ पे मुकम्मल हो गया। इसके बाद हम आएंगे लाइन लेवल के ऊपर। अब यहाँ पे बेसिकली आपने 3 मैंडेटरी फील्ड्स को फिल करनी है, फंड सेंटर, कमिटमेंट आइटम और अमाउंट। फंड सेंटर आपका जो भी होगा, जिस डिपार्टमेंट का फंड आपने कंज्यूम करना है आप वो यहाँ पे सेट करेंगे, यानी आपका जो कॉस्ट सेंटर होगा, यानी कॉस्ट सेंटर की जो मैपिंग जिस फंड सेंटर के साथ होगी वो आप यहाँ पे सेट करेंगे। इसी तरह जो जिस जीएल के ऊपर आपने बजट आपका लेके जाना है, उस जीएल से रेलिवेंट जो आपने कंपनी आइटम मैप किया होगा वो कंपनी आइटम यहाँ पे एंटर करेंगे और इसके साथ इसकी इस बजट की वैल्यू यहाँ पे देंगे। अगर आप चाहें तो टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, ये एक ऑप्शन फील्ड है। जी जी, क्लियर है सबको ये टेम्पलेट? जी, और क्योंकि हम इस तरह डेटा फिल कर रहे हैं, सो वी कैन आल्सो हैव अ रिपोर्ट जिसमें हमें ये पता चल सके कि कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जी जी एक लाइव हमारे पास पिक्चर आती होगी इसमें। जी जी, अभी हमने जो पहली स्लाइड देखी थी ये वाली, ये रिपोर्ट ही है हमारी। जब एक दफा बजट एंटर कर लेंगे तो आपको सारा डाटा इस रिपोर्ट में नजर आएगा। देखिए यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन मिल रहा है ना, फंड सेंटर का और कमिटमेंट आइटम का। हमारे पास यहाँ पे फंड सेंटर था फाइनेंस और कमिटमेंट आइटम था ट्रेडिंग चार्जेस। यहाँ पे फॉर सम रीजन फंड का जो है ना ऑब्जेक्ट, वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा, नॉर्मली वो यहाँ पे शो होता है। राइट। जी, तो एक दफा आपने बजट एंटर कर लिया तो आप दोबारा रिपोर्ट में जाएंगे। मैंने अब अगली स्लाइड जो बनाई थी वो रिपोर्ट की ही थी। ये देखिए यहाँ पे आ जाए। अब यहाँ पे आपको इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपने जो बजट इंटर करना है, जो आपने बजट इंटर किया था सेकंड स्लाइड के अंदर, वो आपको यहाँ पे करंट बजट में नजर आएगा। अगर हम एज्यूम करें यहाँ पे आपने जो बजट इंटर किया था प्रीवियस स्लाइड के ऊपर, यहाँ पर, ठीक है, वो आपको यहाँ पे करंट बजट में नजर आएगा। अगर तो आपने उसको रिलीज नहीं किया तो आपको ये पहले तीनों कॉलम्स ब्लैंक नजर आएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास मैंने जिस फंड सेंटर और कमिटमेंट आइटम के कॉम्बिनेशन को यूज किया था वहां पे पहले से कंज्यूमेबल बजट भी पड़ा हुआ था, उसमें से हम कुछ बजट कंज्यूम भी कर चुके थे और उनका रिमेनिंग बैलेंस यहाँ पे आ रहा था। तो आपको यहाँ पे डाटा ऑलरेडी शो हो रहा है। लेकिन अगर अगर तो आपकी ये कॉम्बिनेशन ब्लैंक था तो आपको ये तीनों कॉलम ब्लैंक ही नजर आएंगे। सिर्फ करंट बजट का कॉलम नजर आएगा, जो आप बजट आपने ऊपर दिया था वो यहाँ पे शो होगा। राइट, या
ठीक है। अभी अभी जब हम सिस्टम में करेंगे ना, तो आप सब लोगों को बड़ी क्लियरली ये चीज समझ आ जाएगी। ठीक है, ओके। तो मैंने ऊपर अभी एक बजट एंटर किया था 10,000 रुपए का। ठीक है, ये आप देखें 10,000 रुपए, वो 10,000 रुपए यहाँ पे ऐड हुए थे। यहाँ पे हमारे पास पहले करंट बजट था 1,01,000 रुपए, तो अभी अपडेट हो गया 1,11,000 रुपए हो गया। आपने यहाँ पे नोट किया होगा, देखिए यहाँ पे कंज्यूमेबल बजट हमारे पास सिर्फ 1,01,000 ही शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे इस 10,000 का कोई इफेक्ट नहीं आया, जो चौथे कॉलम में आ चुका है, पहले कॉलम में इसका कोई इफेक्ट नहीं आया, क्योंकि अभी हमने इसको रिलीज नहीं किया इसलिए। अब आगे अगले आगे जाके हम इसको रिलीज करेंगे तो आपको ये कॉलम भी अपडेट होता हुआ नजर आएगा। अब इस नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने इसी बजट को रिलीज करना है। रिलीज करने के लिए मैंने यहाँ पे रेलिवेंट टाइप सेलेक्ट की बजट की रिलीज, और डॉक्यूमेंट टाइप इसकी थी ZREL बजट रिलीज, और इसकी टाइप थी सेम ZREL बजट रिलीज। ठीक है, इस कम्बिनेशन के ऊपर हमने सेम वही डाटा लाइन आइटम लेवल पे एंटर किया। फंड सेंटर है हमारा फाइनेंस, कमिटी आइटम है ट्रेनिंग चार्जेस, और अमाउंट सेम 10,000 रुपए। अब यहाँ आपके पास ऑप्शन है एसपी में कि आप चाहें तो 10,000 या इससे कम कोई भी वैल्यू इंटर कर सकते हैं। तो जितने अगर आप यहाँ पे लेट से 8,000 रुपए इंटर करेंगे तो 8,000 रुपए का बजट रिलीज होगा, बाकी 2,000 रुपए का बजट अनरिलीज ही रहेगा। तो जब मैंने इसको पोस्ट किया, सिस्टम ने ये हमारा एक कंफर्मेशन मैसेज रिलीज किया कि आपका डॉक्यूमेंट नंबर 2020 हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो इसके साथ ही हमारा बजट रिलीज हो चुका है 10,000 रुपए का, जिसको अब मैं किसी भी एससीपी के फंक्शन मॉड्यूल में कंज्यूम कर सकता हूँ। ठीक है, राइट, या ओके। अब इसको रिलीज करने के बाद हम जाएंगे दोबारा उसी रिपोर्ट के अंदर, और वहां पे पहले कॉलम में चेक करेंगे कंज्यूमर बजट के नीचे कि वहां पे 10,000 रुपए की अमाउंट अपडेट हुई या नहीं हुई। ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 1,01,000 रुपए की जो अमाउंट पहले थी वो अब यहाँ पे हो चुकी है 1,11,000 रुपए, और अब हमारा पहला और चौथा कॉलम सेम हो गए हैं। ठीक है, दोनों की अमाउंट सेम हो गई है। श्योर। जब ये सेम होगा उसका मतलब है कि जितना भी प्लान बजट था वो सारा का सारा इज नाउ अवेलेबल टू कंज्यूम, और अगर नहीं है तो उसका मतलब है कि अभी कुछ पेंडिंग अप्रूवल्स है। तो एक क्वेश्चन हमारे पास आया था स्टूडेंट का। सो बेसिकली इन रियल लाइफ सिनेरियो, फॉर एग्जांपल यू आर एन अकाउंटेंट और आप ये मैनेज कर रहे हैं पूरा सिस्टम, सो वो अप्रूवल कौन देता है that now you can release the budget? Is it the CFO or the CEO, या आप खुद से ये decision लेते हैं whenever you are seeing कि आप ज़्यादा expenses हो गए and you need more budget, you just do it yourself, या आपको उसके लिए you need an approval जो system में ही built in है, that you seek an approval और फिर उसके बाद you are able to release? जी, इसके लिए एसएपी में एक चीज होती है एक्सेलरेशन मैट्रिक्स, जिसको हम नॉर्मल जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं अप्रूवल हायरार्की। तो आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन की अप्रूवल हायरार्की है वो एसपी में डिजाइन होगी एक्सेलरेशन मैट्रिक्स के थ्रू। हमारा एसपी में जो एक बेसिक्स का मॉड्यूल है उसके पास ये राइट्स होते हैं कि वो आपकी कंपनी के अंदर जितने भी डेजिग्नेशंस हैं, सीईओ, सीएफओ, सीओओ, जितनी भी डेजिग्नेशन, अकाउंट, इवन के लोएस्ट लेवल तक, ठीक है, वो सारे लेवल्स आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं। अब हर एक लेवल के ऊपर आप एक चीज होती है रोल्स। ठीक है, आप रोल्स डिफाइन करते हैं, हर एक रोल के अंदर फिर आप ट्रांजेक्शन कोड्स असाइन करते हैं। ये सब देखने, जितनी भी स्क्रीन आप यहाँ पे देख रहे हैं, हर स्क्रीन के पीछे कोई ना कोई ट्रांजेक्शन कोड यूज हो रहा है। तो वो हम बेसिकली रोज असाइन, वो तमाम ट्रांजेक्शन कोड असाइन करते हैं रोल्स को, और रोज असाइन होते हैं आपकी अथॉरिटी मैट्रिक्स के अंदर। तो आपकी जितनी भी पोजीशंस हैं, डेजिग्नेशंस हैं, वो सब के सब हम वहां पे असाइन कर रहे होते हैं। तो इस तरह आपकी जो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का कंसेप्ट है वो वहां पे कंप्लायंस होता है उसका, कि हमने किस बंदे को किस किस ट्रांजेक्शन की अथॉरिटी देनी है और कौन किसको किस लेवल तक यूज कर सकता है। श्योर, थैंक यू। ठीक है, ओके। अब ये हमारी रिपोर्ट अपडेट हो चुकी है। इसके बाद हमारा अगला स्टेप है बजट को कंज्यूम करना। ओके, अब ये एक हमारी स्क्रीन है एफआई की। एफआई के अंदर हमारे पास एक वेंडर इनवॉइस की ट्रांजेक्शन है, वो हमने यहाँ पे पोस्ट की। यहाँ पे हमारे पास दो लेवल्स का डाटा है, हेडर लेवल और अनएटमेंट लेवल डाटा। तो हेडर लेवल के ऊपर हमने अभी यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट पे नजर नहीं आ रहा, सबसे ऊपर था हमारे पास वेंडर का कोड नंबर। तो हमने सबसे पहले वो एंटर किया, उसके बाद डॉक्यूमेंट डेट और पोर्शन डेट फिल की। अब यहाँ पे अगेन डॉक्यूमेंट टाइप कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे चूज की वेंडर इनवॉइस। और अब जितनी भी अमाउंट की ट्रांजेक्शन आपने पोस्ट करनी थी, जो भी अमाउंट शो हो रही थी वेंडर इनवॉइस के ऊपर, वो हमने यहाँ पे फिल की 6,000 रुपए।
उसके बाद मैंने यहाँ पे टेक्स्ट इंटर किया अपनी एक याददाश्त के लिए कि ये इनवॉइस किस चीज़ की थी, तो आपने ये यहाँ पे वो लिख दिया। इसके साथ आपका हेडर लेवल डाटा मुकम्मल हो गया। करेंसी भी यहाँ पे आगे पीकेआर, अगर तो वहाँ पे कोई इनपुट टैक्स अप्लाई हो रहा था तो हम यहाँ पे देंगे, कैलकुलेट टैक्स का चेक ऑन करेंगे, इस ड्रिल डाउन मेन्यू से हम उसको सेलेक्ट करेंगे रेलिवेंट टैक्स कोड को, और उसके बाद लाइन आइटम लेवल के ऊपर आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमने अपना जीएल अकाउंट सेट करना है, वो जीएल अकाउंट जिसका कमिटमेंट आइटम का बजट आपने कंज्यूम करना है। तो यहाँ पे मैंने एक जीएल कोड एंटर किया था 410025, जिसका जो मैंने बनाया था ट्रेनिंग चार्जेस के लिए, ठीक है। तो ये हमने जीएल अकाउंट डेबिट किया है यहाँ पे 6000 रुपये से, और यहाँ पे हमने कॉस्ट सेंटर एंटर किया था। कॉस्ट सेंटर आपको यहाँ पे शो इसलिए नहीं हो रहा कि वो हमारे पास यहाँ पे क्योंकि ये लिस्ट काफी लंबी थी, मेरा यहाँ पे पर्पस था कि मैं यहाँ आपको फंड सेंटर और कंपनी आइटम शो करूँ। तो ये जब मैंने यहाँ पे इसको फॉरवर्ड किया तो वो जो फील्ड थी कॉस्ट सेंटर की वो हाइड हो गई। बहरहाल जो मैंने कॉस्ट सेंटर इंटर किया था फाइनेंस का, उसका रेलेवेंट प्रॉफिट सेंटर यहाँ पे एसपी ने पिक कर लिया, और उसके साथ उसका फंड सेंटर और कंपनी आइटम भी ऑटोमेटिक यहाँ पे डेरिवेशन रूल्स के थ्रू असाइन हो गए। एक चीज यहाँ पे याद रखें कि फंड सेंटर कंपनी आइटम ये तीनों फील्ड्स हमने मैनुअली फिल नहीं की, डेरिवेशन रूल्स के थ्रू एसपी ने ऑटोमेटिक इनको यहाँ पे फिल किया है, ठीक है। तो ये एक डाटा एंट्री मोड की स्क्रीन है जहाँ पे हमने हेडर लेवल और लाइन आइटम लेवल डाटा सारे एंटर किया। राइट, या ये डाटा फिल करने के बाद मैंने इस ट्रांजेक्शन को पोस्ट किया। पोस्ट करने के बाद एसपी ने ये मैसेज जनरेट किया कि आपका डॉक्यूमेंट नंबर 1703 एसपी में पोस्ट हो चुका है, ठीक है। अब इसको पोस्ट करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसका एक इंटरव्यू, ठीक है। ये जो आपका डॉक्यूमेंट पोस्ट हुआ 1703, ये एसपी में किस तरह से पोस्ट हुआ, एसपी ने ऑटोमेटिक कौन सा अकाउंट डेबिट किया, कौन सा क्रेडिट किया, वो यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। आपका जो वेंडर था लोकल वेंडर गुड्स के नाम से, उसका अकाउंट डेबिट हो चुका, और आपके जो जीएल था ट्रेनिंग चार्जेस के नाम से, उसका अकाउंट क्रेडिट हो चुका। अब यहाँ पे आपको अमाउंट वही सेम शो हो रही है, क्रेडिट अमाउंट माइनस के साथ 6000 रुपये और डेबिट अमाउंट 6000 रुपये पॉजिटिव के साथ। प्रॉफिट सेंटर इसका फाइनेंस का था, फंड ऑटोमेटिक जो एसपी ने पिक किया इंटरनल फंड सेंटर फाइनेंस का, और कमिटमेंट आइटम ट्रेनिंग चार्जेस का। तो ये आपका एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट एसपी ने ऑटोमेटिक जनरेट किया एफआई के अंदर, श्योर, ठीक है, ओके। अब ये आपका डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया। आपके पास जो इस वक्त व्यू है ये है एफआई का व्यू, ठीक है। जो एफएम के डॉक्यूमेंट जनरेट हुआ वो अलग है। अब उसका जो एफएम में इम्पैक्ट जनरेट हुआ, अब मैं आपको वो दिखाता हूँ रिपोर्ट के अंदर। ये रिपोर्ट है, आपने यहाँ पे अगर आपको याद हो जब हमने लास्ट टाइम इसको देखा था, हमारे पास कंज्यूमर बजट था 1,11,000 रुपये। आपने अभी ऊपर जो ट्रांजेक्शन पोस्ट की थी वो थी 6,000 रुपये की, और यहाँ पे आपको पहले शो हो रहा था 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये में एसपी ने 6,000 रुपये ऐड किया, यानी आपका बजट कंज्यूम हुआ 6,000 रुपये के साथ। तो अब ये यहाँ पे टोटल आ गया 11,000 रुपये, ठीक है। इसी तरह आपका अवेलेबल बजट पहले था 1,06,000 रुपये का, और अब यहाँ पे रिमाइंडर अमाउंट रहेगी 1,00,000 रुपये। और आपका जो एक्चुअल बजट जो आपने शुरू में एंटर किया था बिफोर रिलीज वो था 1,11,000 रुपये का। ये आपको एज इसी तरह शो होगा। ये कॉलम आपका कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई वैल्यूज में चेंज नहीं आएगी। चेंज हमेशा पहले 3 कॉलम्स के अंदर आएगी। जैसे जैसे आप अपना बजट एंटर करते जाएंगे, रिलीज करते जाएंगे, और उसकी ट्रांजेक्शन को कंज्यूम करते जाएंगे। इसकी डिटेल मैंने नीचे लिख दी थी कि आपकी पहले तीनों कॉलम किस तरह अपडेट हो रहे हैं। आपका आपकी जो ट्रांजेक्शन पोस्ट हुई 6,000 रुपये की हुई, तो आपका जो कंज्यूम्ड बजट का कॉलम था सेकंड कॉलम, ये अपडेट हुआ 6,000 रुपये से, तो ये 5,000 से 11,000 रुपये आ गया। और आपका जो तीसरा कॉलम था अवेलेबल अमाउंट का, ये भी अपडेट हुआ 1,06,000 से ये 1,00,000 रुपये आ गया। राइट, जी सबको क्लियर है? जी, if anybody has any questions, please feel free. Let's done. जी एसन, आपके सवाल का जवाब है यस। सो इन मोस्ट केसेस वो अलग ही आईडी से ही होगा, but it can be from the same ID entries. It's done with same. जी, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, so we can move ahead. ओके, अब इसके साथ एफएम का साइकिल, उसकी इंटीग्रेशन एफआई के अंदर सिस्टम व्यू में आपने देख लिया सारी स्क्रीनशॉट्स। अब हम दोबारा जाएंगे स्लाइड्स के ऊपर। हमारे पास अगली स्लाइड है एफएम का मास्टर डेटा। मैं आपको पहले अभी सिस्टम में दिखा भी चुका हूं, और शुरू की स्लाइड में बताया भी था कि हमारे पास एफएम का जो मास्टर डेटा है उसमें 3 मैंडेटरी आइटम्स हैं, फंड सेंटर और कमिटमेंट आइटम,
ठीक है, इनकी एक ब्रीफ व्यू भी हम पहले ले चुके हैं। अब इसमें अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो कि हमने इन 3 मैंडेटरी मास्टर डेटा आइटम्स के साथ कुछ एडिशनल मास्टर डेटा आइटम भी हमें एसएपी में यूज करने हैं, यानी आपने जो बजट एंटर करना है उस कम्बिनेशन में फंड सेंटर और कंप्यूटर आइटम तो आ रहे हैं, लेकिन आपने इस कम्बिनेशन को मजीद एक्सटेंड करना है, तो आप चाहें तो एक्सटेंड कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ एडिशनल ऑप्शनल अकाउंट असाइनमेंट्स भी होती हैं, फॉर एग्जाम्पल फंडेड प्रोग्राम, ठीक है, तो आप उसको भी चाहें तो यूज कर सकते हैं, लेकिन वो एफएम का आइटम नहीं है, वो दूसरे मॉड्यूल से आएगा। मास्टर डेटा के अब मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। सबसे पहले फंड, ये आपका एक इंटरनल फंड था जो मैंने अभी यूज किया था, बजट रिपोर्ट्स के अंदर दिखाई भी था, तो उसका मैंने नाम दिया इंटरनल फंड। इसका वैलिडिटी पीरियड आप डिफाइन कर सकते हैं कि किस पीरियड से किस पीरियड तक आप इसको यूज कर सकते हैं। फंड के बाद दूसरा हमारे पास मास्टर डेटा आइटम है फंड सेंटर। फंड सेंटर में हमने इसका एक नाम दिया, उसके अब ये आपके पास दो तरह की फील्ड्स हैं, सबसे पहली है शॉर्ट फील्ड और दूसरी है लॉन्ग फील्ड। तो शॉर्ट फील्ड में आप इसका एक मुख्तसर नाम देंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर, जो कि लॉन्ग फील्ड है, यहाँ पे आप इसका एक लॉन्ग नेम दे सकते हैं। इसी तरह फंड की तरह यहाँ भी वैलिडिटी आएगी इसकी कि ये किस पीरियड से लेके किस पीरियड तक वैलिड होगा, ये किस कंपनी कोड के ऊपर वैलिड होगा वो भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। कंपनी कोड एसएपी एफआई मॉड्यूल के अंदर आपका एक लीगल एंटिटी यूनिट है जिसके ऊपर आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरेट कर सकते हैं। तो वो बहरहाल जब आपको एफआई की अगर कोई लेंगे ट्रेनिंग तो उसमें आपको तफसील से बताया जाएगा कि कंपनी कोड का कंसेप्ट क्या है और इसका ओवरऑल ऑर्केस्ट्रेट किस तरह से काम करता है। फंड सेंटर के बाद हमारा तीसरा मास्टर डेटा आइटम है कंप्यूटर आइटम। ये हमने डिफाइन किया, इसका रेलिवेंट एफएम एरिया जो था MWM0 मैंने शुरू में डिफाइन किया था, उसका इसी तरह शॉर्ट नेम और लॉन्ग नेम। उसके बाद इसकी आती है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कैटेगरी और कंप्यूटर आइटम कैटेगरी। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कैटेगरी में हम यहाँ पे अगर तो आपका ये कंप्यूटर आइटम बिलोंग करता है किसी एक्सपेंस या रेवेन्यू आइटम से, तो आप यहाँ पे देंगे 30 फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कैटेगरी, और कंप्यूटर आइटम कैटेगरी में हम देंगे एक्सपेंस के लिए 3, रेवेन्यू के लिए 2। अब ये जो कॉम्बिनेशन है इन दोनों का 33 या 32 का, उसके जरिए एसपी को पता चलता है कि ये जो कंप्यूटर आइटम है या ये एक्सपेंस के लिए बनाया गया है या रेवेन्यू के लिए। Sure. ठीक है जी, मास्टर डेटा हमारा यहाँ पे मुकम्मल हो गया। इसमें कोई सवाल हो तो पूछ लें और हम आगे चलें। जी, if anybody has any questions, वैसे ये काफ़ी straight forward है। कोई question है so please feel free. Okay, समीरला पूछ रहे हैं कि these codes will be fixed. देखिए हमारे पास यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कैटेगरी, तो यहाँ पे हमारे पास इस फील्ड के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। इसी तरह कंप्यूटर कैटेगरी में भी मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। अब एसपी में एफएम का मॉड्यूल जाहिर है किसी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए डिजाइन नहीं किया गया, ये पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज है सबके लिए डिजाइन किया गया। तो यहाँ पे एसपी ने अपने तौर पर जितने भी मैक्सिमम टाइप की ट्रांजेक्शन कैटेगरीज डिफाइन कर सकता था एसपी ने डिफाइन कर दिए। मैं आपको ये कंफर्म कर सकता हूँ कि ये सब की सब कैटेगरीज जो यहाँ पे अवेलेबल हैं आपके पास, ये प्री डिफाइंड है, एसएपी की तरफ से ही प्री डिफाइंड है। आपने सिंपली रेलिवेंट कॉम्बिनेशन को यूज करना है। राइट। और खुरम अगर आप शब्बीर चाहें और उजैर पूछ रहे हैं कि कमिटमेंट आइटम क्या है, इफ यू कैन डिफाइन कमिटमेंट आइटम, जी कमिटमेंट आइटम एससीपी का एक मास्टर डेटा ऑब्जेक्ट है जिसके जरिए आप बजट डिफाइन करते हैं किसी भी एक्सपेंस या रेवेन्यू आइटम के लिए। देखिए आपका जो चार्ट ऑफ अकाउंट होता है वहाँ पे आपकी कंपनी में सैकड़ों तरह के जीएल्स होंगे और हर एक जीएल की एक यूनिक नेचर होगी कि वो सबसे पहले जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है ना, अगर हम एक्सपेंस या रेवेन्यू की बात करें तो ये दो तरह की ब्रॉड क्लासिफिकेशन हो गई कि वो एक्सपेंस का जीएल है या रेवेन्यू का है। अगर तो वो एक्सपेंस का है तो उसमें आपके पास सैकड़ों तरह के एक्सपेंस होंगे। मैंने उसमें से सिर्फ एक यहाँ पे बनाया था ट्रेनिंग चार्जेस के नाम से। अगर आपका प्रिंटिंग स्टेशनरी का एक एक्सपेंस है तो आप उसका बनाएंगे यार, ठीक है। तो ये मतलब सैकड़ों तरह के आपके जो जीएल होंगे, हर एक जीएल के लिए आप अलग से एक कंप्यूटर आइटम बनाएंगे। तो आप बेसिकली आपकी 1-to-1 मैपिंग होगी यहाँ पे हर एक जीएल की रेलेवेंट कंप्यूटर आइटम के साथ। Right, thank you for that. Ehsan Shah Nawaz ने question किया, does the system will see the link between fund center and commitment item, or we can post expense with different fund center and commitment item?
ठीक है, देखिए इसमें इस तरह से है कि मैं आपको लेके चलता हूँ पीछे स्क्रीन की तरफ। यहाँ पे जब हमने बजट इंटर किया था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने देखा कि जब आपने यहाँ पे बजट इंटर किया, अभी हम सिस्टम में करेंगे भी सही, वहाँ पे आपने 3 मैंडेटरी आइटम फिल किए थे, फंड, फंड सेंटर और कम्युनिटी आइटम। हमेशा आपने इन 3 मास्टर डेटा ऑब्जेक्ट्स के कम्बिनेशन के ऊपर बात करनी है। ठीक है, ये तीनों मास्टर डेटा आइटम जब आप बजट में इंटर करेंगे तब आपका बजट इंटर होगा। जब आपने यहाँ पे 1,11,000 रुपए का बजट इंटर कर दिया, तो आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि ये 1,11,000 रुपए का बजट सिर्फ फंड के ऊपर नहीं है, सिर्फ फंड सेंटर के ऊपर नहीं है, सिर्फ कम्युनिटी आइटम के ऊपर नहीं है। ठीक है, ये इन तीनों के कम्बिनेशन के ऊपर है। जब ये कम्बिनेशन सिस्टम में सेव हो गया, तो एसपी ने हमेशा बजट की कंजम्पशन और उसका चेक या उसका अवेलेबिलिटी जो चेक्स परफॉर्म करने हैं, वो हमेशा उस कम्बिनेशन के ऊपर ही करने हैं। ठीक है, तो आपने हमेशा ये चीज देखनी है कि उन तीनों चीजों के ऊपर एट द सेम टाइम कितना बजट अवेलेबल है। तो ये ऐसे भी काम इस तरह से करता है हमेशा। जब देखिए, अभी हम जाके एक वेंडर इनवॉइस पोस्ट करेंगे सिस्टम में, मैं वहां पे जीएल भी इंटर करूंगा, जीएल के साथ कॉस्ट सेंटर भी दूंगा। ठीक है, ये 2 चीजें मैं दूंगा। अब वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि एसएपी ने यहाँ पे इस जीएल के साथ कौन सा कम्युनिटी पिक किया, उस कॉस्ट सेंटर के साथ कौन सा फंड सेंटर पिक किया, और इसी तरह साथ साथ कौन सा फंड और कम्युनिटी आइटम पिक किया। ठीक है, तो वहां पे आपको वो चीजें नजर आएंगी। जो डेरिवेशन रूल्स मैंने डिफाइन किए हैं एसपी के अंदर, उन डेरिवेशन रूल्स में मैंने एसपी को डिक्टेट किया था कि तुमने इस कमिट आइटम के अगेंस्ट ये वाला जीएल मैप करना है। ठीक है, और इस कॉस्ट सेंटर के अगेंस्ट फला फंड सेंटर को तुमने असाइन करना है। तो वो जो हमने डिक्टेशन वहां पे दी हुई है, बेसिकली वो चीज एसपी को बताती है कि तुमने बजट किस तरह यूज करना है, किस तरह ट्रैक करना है। राइट और वकास का एक क्वेश्चन है, इफ डिले डेटा एंट्री आफ्टर एक्सपेंस रीच लिमिट, why not an alert after it expense reach 90% of budget or something? यानी for जी example जब आप, हाँ तो इसका जी, मैं समझ गया, मैं क्विकली। समझ गया, मैं समझ गया। जी, ये अच्छा सवाल है। देखिए, इसमें ये चीज एसपी में बिल्ट इन नहीं फंक्शन। ठीक है, ऐसे फंक्शन कंसल्टेंट, ये चीज मेरे हाथ में है कि मैं एसपी की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इसको किस तरह कॉन्फ़िगर करता हूँ। अगर आप ये रिक्वायरमेंट है कि यूजर को डाटा एंटर करते वक्त जब 80% बजट कंज्यूम हो जाए, तो वहां पे सॉफ्ट चेक लॉजिक के थ्रू उसको ये एक मैसेज नजर आए, एक इंफॉर्मेशन नजर आए कि आपका बजट 80% पे पहुंच चुका है। ठीक है, तो वो एक वार्निंग मैसेज आएगा या एक इन्फॉर्मेशन मैसेज आएगा, वो भी मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं उसको किस तरह से डिजाइन करता हूँ। तो उस डिजाइनिंग के ऊपर डिपेंड करता है हमेशा। अगर आप चाहें कि 80% के ऊपर एरर आ जाए तो हो सकता है। ठीक है, अब मैं कोई इसकी एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि जब मेरा बजट 80% तक पहुंचे तो एक इन्फॉर्मेशन मैसेज शो हो, जब 90% पे पहुंच जाए तो एक वार्निंग मैसेज शो हो, और जब 100% बजट कंज्यूम हो जाए तो एरर मैसेज शो हो। ठीक है, तो ये इस तरह हम इसको डिजाइन कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। राइट क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, सो इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ टाइम हम मूव करते हैं, बाकी जो क्वेश्चंस अगर रह गए सो वी कैन आंसर देम इन द एंड। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे आखिरी स्लाइड है, एफएम की इंटीग्रेशन विद अदर एसएपी मॉड्यूल्स। श्योर। एसएपी का जो हमारे एफआई का मॉड्यूल है, फाइनेंस का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसको बोलते हैं, तो इसमें जो भी इनकम या एक्सपेंस रेलिवेंट आप पोस्टिंग करेंगे, उसकी इंटीग्रेशन एफएम के साथ हो जाएगी। एमएम के अंदर आपका जो भी प्रोक्योरमेंट का बजट है, उसकी इंटीग्रेशन एफएम के साथ हो जाएगी। इसी तरह एसएम के अंदर जो भी आपकी पेरोल पोस्टिंग है और बियॉन्ड द पेरोल पोस्टिंग जो भी आपकी एक्सपेंस आप पोस्ट करेंगे, वो सब के सब एफएम के साथ इंटीग्रेट हो जाएंगे। इसी तरह जो प्लांट मेंटेनेंस का मॉड्यूल है, वहाँ पे आपकी इक्विपमेंट मेंटेनेंस होती है, तो इक्विपमेंट मेंटेनेंस के लिए जितने भी आपकी एक्सपेंस इनकर होंगे, वो भी एफएम के साथ ना सिर्फ इंटीग्रेट होंगे, बल्कि एफएम के थ्रू ही उसका बजट कंज्यूम होगा। और इसी तरह आपका जो